بسم اللہ الرحمن الرحیم. گوسوامی ہے بولو. میرا سوال ہے کہ قرآن ایک ایشوریہ گرنتھ ہے، میں اس کو کیسے مانوں؟ بس اب سوال کو دہرا سکیں گے؟ میں نے صحیح سے نہیں سنا. خدا کی کتاب ہے. قرآن ایک ایشوریہ گرنتھ ہے، میں اس کو کیسے مانوں؟ پرانے ایشوریہ گرنتھ ہے. ایشوریہ دھرم کو کیسے مانوں؟ گرنتھ یہ کتاب ہے، کیسے مانوں میں؟ آپ ادھر ہے. آپ پرانے گرنتھ کی کتابوں کو کیسے مانوں؟ قرآن اللہ کی قرآن ایک کتاب ہے، میں اس کو کیسے مانوں کہ یہ سچی کتاب ہے؟ قرآن ہاں، قرآن کی بات کرتا ہوں. ہاں سمجھ گیا. نہیں کیونکہ مائکروفون آپ سمجھ گیا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ قرآن کو کیسے مانوں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ صحیح گرنتھ ہے خدا کی طرف سے، ایشور کی طرف سے. یہ آپ کا سوال ہے. بھائی صاحب کا بہت اہم سوال ہے، اچھا سوال ہے کہ میں کیسے مانوں کہ خدا، کہ یہ قرآن خدا کی کتاب ہے، صحیح گرنتھ ہے، اس میں غلطیاں نہیں ہیں. میں نے ایک تقریر کی ہے جس کا موضوع ہے کیا قرآن خدا کی کتاب ہے، کیا قرآن خدا کا کلام ہے. اور یہ تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی ہے. وقت نے کہ 2 گھنٹے میں لوں، لیکن کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں. اکثر لوگ جب پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے مانیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر کوئی بھی کتاب، کوئی بھی کلام کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے، ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ وہ کتاب ہر دور میں اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہزاروں سال پہلے دور تھا معجزہ کا، اور الحمدللہ قرآن معجزہ کا معجزہ ہے. اس کے بعد جب قرآن نازل ہوئی وہ دور تھا لٹریچر اور پوئٹری کا، لٹریچر اور پوئٹری کا دور تھا. الحمدللہ آپ کوئی بھی عربی ماہر سے پوچھو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کہ آج وہ تسلیم کرتا ہے کہ سب سے بہترین عربی زبان میں کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید. لیکن آج اگر کوئی مذہبی کتاب یہ کہتا ہے کہ دنیا چپٹی ہے، بہت اچھے انداز میں دنیا چپٹی ہے، کیا آپ مانیں گے؟ آپ مانیں گے بھائی صاحب؟ نہیں مانیں، کیونکہ آج لٹریچر اور پوئٹری کا دور نہیں ہے، آج دور ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا. تو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھنا پڑے گا کہ قرآن خدا کا کلام ہے. اس کے ذریعے جو لوگ نہیں مانتے کہ قرآن خدا کا کلام ہے، آج سائنس یہ کہتی ہے ہماری کائنات وجود میں کیسے آئی. کچھ 40 سے 50 سال پہلے کچھ سائنسدان کو نوبل پرائز ملا تھا یہ ڈسکور کرنے کے لیے کہ ہماری کائنات وجود میں کیسے آئے، اور اسے کہتے تھے بگ بینگ، ایک بڑا دھماکہ. اور سائنس آج یہ کہتی ہے کہ ہماری کائنات ایک پرائمری نیبولا تھی، اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا، سیکنڈری سیپریشن، اس کے بعد وجود میں آیا گیلیکسی، ستارے، سورج، چاند، اور یہ دھرتی جس پہ ہم رہ رہے ہیں. تو میں پوچھوں گا یہ کب آپ کو پتا چلا؟ تو وہ کہیں گے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے. یہ چیز جو آپ کو 40 سال 50 سال پہلے پتا لگی، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے 1400 سال پہلے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں جہاں لکھا ہے، کیا لکھا؟ اولم یر الذین کفروا، کیا وہ کافر نہیں جانتے ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما، کہ ہماری کائنات ایک تھی اور اللہ نے اسے جدا کیا، ففتقناہما. تو یہ جو بگ بینگ آج کے سائنسدان کو پتا لگی 40-50 سال پہلے، یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا گیا ہے. اسے کون لکھ سکتا ہے؟ اور عام طور پہ جب میں سوال پوچھتا ہوں غیر مسلمانوں کو یا وہ انسان کو جو ایشور میں نہیں مانتا ہے کہ اگر میں ایک ایسی
चीज इक्विपमेंट आपके सामने लेके आता हूं जिसे किसी ने नहीं देखा, दुनिया में कोई इंसान ने नहीं देखा, आपके सामने अगर ले आ जाती है और मैं कहता हूं कि इसके मैकेनिज्म के बारे में, इसके बारे में सबसे पहला शख्स कौन कह सकता है? अगर एक इक्विपमेंट है, एक नया इक्विपमेंट है, एक कंप्यूटर है जिसे दुनिया में किसी ने नहीं देखा, कोई भी इंसान ने नहीं देखा, इसे सबसे पहला कौन सा शख्स है जो इसके बारे में कह सकता है? खुदा। ठीक है, आप खुदा में मानते हैं। जो खुदा में नहीं मानता है वो कहेगा बनाने वाला, मेकर, मैन्युफैक्चरर, क्रिएटर, खालिक। आप खुदा में मानते, बिल्कुल सही। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो इंसानों ने 50 साल पहले जाना, इस कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा गया है, इसे कौन लिखा? खुदा ने लिखा। खुदा ने लिखा। आप तो माशाअल्लाह पहले निशानी में मान गए। कुरान में जिक्र आता है कुछ लोग एक निशानी से मानते हैं, कोई 10 निशानी से मानता है, 10 आयतें से मानता है, कोई हजारों आयतों के बाद नहीं मानता। अगर कोई नहीं मानेगा तो मैं कहूंगा ठीक है, आप कहेंगे, कोई कहेगा अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने लिखा होगा, मैं बहस नहीं कहूंगा। मैं पूछूंगा कि ये चांद की रोशनी जो है वो अपनी है, खुद की रोशनी है, क्या ली गई रोशनी है? ली गई। किससे ली गई है? सूरज। माशाल्लाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, माशाल्लाह। सूरज से ली गई। ये कभी पता चला? 200 साल पहले, 300 साल पहले हम समझते थे कि चांद की रोशनी खुद की रोशनी है। कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है, सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में, कि सूरज की रोशनी खुद की है, चांद की रोशनी ली गई है। ये 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि चांद की रोशनी खुद की नहीं है, ली गई है? कौन लिख सकता है? खुदा। आप मान गए, माशाअल्लाह। कोई जो नास्तिक है शायद नहीं माना, फिर भी कहेगा हो सकता है कि आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। मैं आर्ग्यू नहीं कहूंगा। जब मैं स्कूल में था, मैंने पढ़ा था कि चांद रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, लेकिन सूरज रिवॉल्व कर रहा है लेकिन रोटेट नहीं कर रहा, अपने महवर पे नहीं घूम रहा है। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल व नहारा, कि उसने बनाया है रात और दिन, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फ़ल्कि यस्बहून, दोनों अपने वो घूम रहे हैं, गर्दिश कर रहे और अपने महवर पे घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे, रोटेट कर रहे। मैंने स्कूल जब सन 1982 में पास किया था, तकरीबन 30 साल पहले, वहां मैं पढ़ा था कि सूरज अपने महवर पे नहीं घूम रहा है, लेकिन कुरान मजीद में लिखा है, तो मैं चौंक गया। फिर पता लगा 20 साल 25 साल पहले कि चांद के अलावा सूरज भी अपने महवर पे घूम रहा है, और सूरज एक बार रोटेट करने के लिए 25 दिन लेता है। तो कौन ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिख सकता है कि सूरज भी घूम रहा है? खुदा है, दूसरा कोई। आप 3 बात में मान ली। इस तरीके से कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, और तकरीबन 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में कहते हैं। इसमें लिखा है किस तरीके से कायनात बनी, किस तरीके से कायनात फैल रहा है। एस्ट्रोनॉमी लिखा है, एस्ट्रोनॉमी की वजह वाटर साइकिल ले गए, किस तरीके से पानी समुद्र से इवेपोरेट होता है, क्लाउड बादल बनता है, बादल अंदर जाता है, बारिश होती है, फिर से वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। लिखा है किस तरीके से 2 किस्म के पानी हैं, मीठा पानी और खारा पानी, ये दोनों मिलते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते। लिखा है जियोलॉजी के बारे में, किस तरीके से माउंटेन अवताद है, किस तरीके से उसका जड़ है, और जितना माउंटेन ऊपर है, पहाड़ ऊपर है, उतनी ज्यादा नीचे है। ये कुरान मजीद में लिखा है, जिसे हमें आज मालूम पड़ा, कल मालूम पड़ा साइंस में। कल मतलब 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले। ये कौन लिख सकता है? कुरान में लिखा है बायोलॉजी में, ये हर जानदार चीज
पानी से बनी गई है। सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30, जिसे आज हमें पता चला। कुरान में लिखा है कि ना ही इंसान लेकिन पेड़ पौधों के अंदर भी जिन्स है, मर्द और औरत, जो हमें आज पता चला, जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है। बॉटनी, जियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, 1000 से ज्यादा आयतें हैं। हर साइंस के बारे में जो हमें आज मालूम पड़ा, जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है, कल मालूम पड़ा तो 1400, उसके बाद में पूछूंगा कौन लिख सकता है, और जवाब है खुदा। माशाअल्लाह। तो साइंस के जरिए हम ये साबित कर सकते हैं कि खुदा, ये कुरान खुदा की किताब है। अगर ये साइंस आप दूसरी मजहबी किताबों के जरिए परखेंगे, इसको बाइबल के जरिए परखेंगे, तो सैकड़ों आयतें बाइबल में जो साइंस के खिलाफ है। आप इसको हिंदू मजहबी किताबों के जरिए मुताला करेंगे तो सैकड़ों आयतें वेदा में और हिंदू मजहबी किताबों में जो साइंस के मुताबिक से सही नहीं है। बुद्ध मजहब की किताब लेंगे तो गलतियां पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि साइंस के जरिए मैं कुरान को साबित कर रहा हूं। हम मुसलमानों के लिए कुरान और ऊंचा है, लेकिन गैर मुसलमानों के लिए, नास्तिक के लिए साइंस नंबर 1 है। तो मैं आपके नंबर 1 को लेता हूं, मेरे नंबर 1 को लेता हूं और साबित करता हूं कि कुरान इससे कई दर्जे ऊंचा है। तो इसके जरिए हम ये साबित कर सकते हैं कि कुरान माशाअल्लाह खुदा की किताब है, ईश्वर की किताब है, अल्लाह की किताब है। और आज की तहकीक कहती है कि जितने भी आयतें हैं, एक भी आयत एस्टैब्लिश साइंस के खिलाफ नहीं है। तो इसके जरिए आप साबित कर सकते हैं कि कुरान खुदा का किताब है और सही किताब है और इसमें कोई गलतियां नहीं। जितने बाकी मजहबी किताब जो खुदा की तरफ से आए, उनमें तब्दीली हो चुकी है। ये मैं नहीं कहता हूं, मजहब के ठेकेदार कहते हैं, पंडित कहते हैं, प्रीस्ट कहते हैं कि जितनी बाकी मजहबी किताब है, चाहे ईसाई मजहब की हो, हिंदू मजहब की हो, इसमें तब्दीली हो चुकी है। आप जानते हैं महाभारत पहले जब जिक्र महाभारत को कहा गया था, अर्जुन के पोते ने कहा, उसमें 8000 श्लोका थे। कितने? 8000 श्लोका। फिर जब से एक जन ने सुना, दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, सदियों बाद आने लगे, फिर महाभारत हो गया 24,000 श्लोका। आज है 1,00,000 श्लोका। अब टीवी पे देखेंगे रामानंद सागर का महाभारत, उसमें देखते मारुति भी पीछे जाती है। वो लेटेस्ट तब्दीली है। तो मजहबी किताबों में इंसान तब्दीली कर रहे हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान नाजिल किया और इसकी हिफाजत करेंगे। जितने भी मजहबी किताब नाजिल हुई कुरान के पहले, वो सिर्फ महदूद थे एक वक्त के लिए, एक ग्रोह के लिए, सारे इंसानों के लिए नहीं थी। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी अल्लाह का कलाम है, आखिरी पैगाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए है। और सारी सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रहते, चाहे यूएसए में, चाहे यूके में। और सिर्फ इस्लाम ही इंसानियत का हल है। इसीलिए क्योंकि ये आखिरी किताब है, खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने इसे महफूज रखने का वादा किया है। कितनी भी कोशिश करो, आप कुरान में बदली ला ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहा है। जितने पहले मजहबी किताब आए, वक्त के दौरान साल गुजरते हुए उनमें तब्दीली आए, उसमें मिलावट आई। और क्योंकि वो महदूद था एक वक्त के लिए, खुदा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने उसे महफूज रखना को सही नहीं समझा। लेकिन क्योंकि कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है, आखिरी कलाम है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं ला सकता है। अल्लाह इसकी खुद हिफाजत करेंगे और हर वक्त, हर दौर में ये कलाम अपने आप को साबित करेगा क्या ये खुदा का कलाम है। भाई साहब, आपको अभी यकीन है? भाई साहब, यकीन है। आपको यकीन है कि कुरान खुदा का कलाम है? 100%। आप एक खुदा में मानते? कोई आप मानते कि एक खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? खाली एक कोई मानता हूं मैं। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? गलत। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है?
ना इसको तो मालूम नहीं था मेरे को, नहीं मानते? पहली बार आया हूँ प्रोग्राम में आज। ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका बैकग्राउंड हिंदू मजहब है, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे हिंदू मजहब का मुताला करेंगे तो उसमें लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेकर 27 में उसमें लिखा है कि एक मलेशिया आएगा, मलेशिया मतलब फॉरेनर, वो आएगा, उसका नाम रहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो सच्चे दीन का प्रचार करेगा। इसका जिक्र है, ये चीज आगे भी लिखा है भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेकर 27, पहला 3 से लेकर 8 है, अभी 10 से लेकर 27। इसमें लिखा है कि ये जो आएगा, ये जो पैगंबर आएगा और अपना दीन फैलाएगा, उसके मानने वाले उनकी खतना की जाएंगी, वो दाढ़ी रखेंगे और वो सुअर का गोश्त नहीं खाएंगे, वो अपने और वो सही दीन का प्रचार करेंगे, वो लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए आजान देंगे, वो अमन फैलाएंगे और भाजी पाला खाने से नहीं पाक होंगे लेकिन गोश्त खाने से। इसी तरीके से भविष्य पुराना के अलावा आप देखें कुंटप सुक्ता अथर्वा वेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 124 मंत्रा नंबर 1 से लेके 14 में कुंटप सुक्ता में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई। लिखा है ऋग्वेद में वॉल्यूम नंबर 1 अध्याय नंबर 59 वर्स अध्याय नंबर 53 वर्स नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई जगह है, मैं हवाले दे सकता हूं सैकड़ों, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ऋग्वेद वॉल्यूम नंबर 1 चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद वॉल्यूम नंबर 1 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 2, कई हवाले। और एक साफ तौर पे जो लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो है कल्कि अवतार में, कि कल्कि पुराना में अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 5 7 9 11 और 15 में लिखा है कि एक कल्कि अवतार आएगा जिसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब ईश्वर भगवान, यास मतलब उसका बंदा, ईश्वर का बंदा, अरबी में कहेंगे अब्दुल्लाह। उसके मां का नाम है सुमति, सुमति मानी अमन, अरबी में होता है आमिना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां का नाम था अब्दुल्ला, संस्कृत में बोलेंगे विष्णु यास, वालिद का नाम था विष्णु यास, अरबी में होता अब्दुल्ला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना, संस्कृत में कहते सुमति। इसमें लिखा है कि वो सारी दुनिया में अमन फैलाएंगे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, लिखा है कि वो अमन के शहर में पैदा होंगे जो मक्का है, उस शहर के लीडर के घर में पैदा होंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के खानदान में पैदा हुए। उसमें लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त होंगे, वो है 4 खुलफा राशिदीन। उसमें लिखा है कि सबसे पहला पैगाम उसे एक गार में मिलेगा, एक केव में मिलेगा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पैगाम मिला गारे हिरा में। उसको सबसे पैगाम मिलेगा रात के दौर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला पैगाम इकरा रात में मिला। उसके बाद वो कल की अवतार हिजरत करेगा नॉर्थ के तरफ, फिर वापस आ जाएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना पे, फिर से वापस आया। ये सारी पेशन गोई सिर्फ एक ही शख्स के तरफ इशारा कर रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई ना ही वेद में, ना ही हिंदू मजहबी किताब में है, बाइबल में भी है, बुद्ध मजहब की किताब में भी है। तो आपकी मजहबी किताब में जब लिखा है पेशन गोई है कि आपको कल के अवतार में मानना चाहिए, तो अब आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? हाँ मानता हूँ। अब मानते? बिल्कुल सही, आपको कोई शक नहीं? कोई शक नहीं। आप मानते खुदाई के? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? हाँ। तो उसका मतलब जो इस्लाम की अहम शर्त आप उसको मानते? हाँ। तो आप चाहते इस्लाम कबूल करे? वो तो बाद में सोचेंगे, अभी ठीक है, आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप सोचिए, अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं बिना झिझक। ईमेल islam@irf.net। कोई भी शक है मुतमईन हो जाइए, आप सिर्फ मुझे मत मानिए, जाके तहकीक करो, जाकिर जो कह रहा है खुदा के बारे में सही है,
ذاکر تو ایشور کے بارے میں کہہ رہا ہے صحیح ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے صحیح ہے، حوالہ لے کے، ایسا نہیں کہ ادھر لکھے ادھر لکھے حوالے کے ساتھ جب آپ کو مطمئن ہو جائے گا تو دیر مت کیجئے، مجھے مت ملیے، آپ کہو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، انشاءاللہ آپ کو سفلتا ملیں گی اس دنیا میں اور آخرت میں۔ لا